صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کے درس کا عنوان جو ہے اس وقت کا توحید یعنی خدا یعنی اللہ ہے۔ کل آپ کو جعفر صاحب نے خدا کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوگا، ہے کیا بیان کیا؟ توحید میں کیا بتایا ہے؟ ہاں، اور دین اسلام میں اگر کوئی کام واجب ہے تو ہمارے اگر واجب ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر کوئی کام حرام ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور توحید صفاتی بتائے، توحید ذاتی بتائے۔ توحید ذاتی وہ ہے یعنی ہر خدا میں ہر شرک کی نفی کر، یعنی خدا میں کسی کا کوئی کا شریک نہیں۔ اور توحید صفاتی بتائے یعنی ہر صفت اس کے، اور ایک توحید ذاتی میں ایک عہد ہے کہ مطلب یعنی وہ اجزا جسم نہیں رکھتا۔ اور توحید صفاتی بتایا کہ ہر صفت اس کے اندر ہے، اور توحید افعالی بتایا یعنی خدا اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ چیزوں کو انہوں نے ایکسپلین کیا۔ ابھی آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو اس وقت پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو آپ دھیمے دھیمے سمجھیں گے، کیونکہ یہ بات کی باتیں ہیں، بات کا درس ہے، بات کا سبجیکٹ ہے کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے۔ خدا کے صفات دو طریقے کے ہوتے ہیں، ثبوتی ہے اور سلبی ہے۔ وہ صفات جو اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ جو پائے جانے چاہیے وہ ثبوتی ہے، جو نہیں پائے جانے چاہیے وہ سلبی ہے۔ سب انشاءاللہ بعد میں آپ دھیمے دھیمے سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ آج ہم جو ہے وہ تمہیداً جو ہے وہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں چیزیں کچھ بیان کریں گے۔ دو چیز ہے سمجھنا ہے ہم کو، ہے نا، دو چیزیں سمجھنا ہے۔ ایک ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے نا۔ دوسرے خدا اگر ہے تو کتنا خدا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو جس کو دو عنوان سے ہم لکھیں گے، خدا کی تلاش، خدا اور خدا کی شناخت۔ پہلے خدا کو پائیں پھر خدا کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے بات کو؟ خدا کی تلاش اور خدا کی شناخت۔ آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے، تین طرح کا سوال ہے جو ذہن میں ہم سب کے آتا ہے۔ نمبر ایک، دوسری ماجک ہے، یہ خالی لالی ہے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک، ہم کہاں سے آئے؟ کالی ماجی کو منگائی، کالی والی۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دو، ہم کہاں پر ہیں؟ ٹھیک، تمہارے ذہن میں آتا نہیں آتا ہے؟ ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں پر ہیں۔ تیسرا سوال، ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک، یہ تین سوال ہے۔ کیا ہے؟ پہلا سوال ہم کہاں سے آئے ہیں، دوسرا سوال ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، تیسرا سوال ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، یہاں سے ہمارا سفر کہاں پہ۔ جیسے ایک آدمی لکھ لیجیے، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں جائیں گے۔ سب کو اردو آتی ہے نا لکھنا؟
हाँ हिंदी में लिखिए, अगर उर्दू नहीं आती तो हिंदी में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ हिंदी में लिखिए, जिसमें आप लिख सकते हैं लिखिए। वो कह रहे बोर्ड पे जो उर्दू लिखा है उसको हिंदी लिख दें, हिंदी नहीं लिख पाएंगे हम कहाँ से आए, हम बोल लेना, उसको लिख लीजिए, हम कहाँ से आए हैं, ठीक, उसको हिंदी में लिख दिए। हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, लिख लिया आपने। जैसे एक आदमी सवाल करता, तवज्जो करिए, हमारी तरफ देखिए। जैसे एक आदमी खुदा न खास्ता किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, बेहोश हो जाए, उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इलाज के लिए, जब थोड़ा उसकी तबीयत ठीक होती है, यही सवाल करता है। क्या करता है? यही सवाल करता है, हमें यहाँ क्यों लाया गया है ना, यानी हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे कैसे आए, दूसरे हम कहाँ पे हैं इस वक्त, ये पूछता है कि भाई हमें कहाँ लेके आ रहे हो, यहाँ हम कहाँ हैं, घर है या हॉस्पिटल है, क्या है, और हम कब यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, हमें कहाँ से यहाँ से उठा के लाया गया है, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और हम यहाँ से कब हमें ले जाया जाएगा। पहले सवाल का जवाब अगर हल हो गया, इधर देखिए मेरी तरफ, पहले सवाल को अगर आप समझ गए, जवाब तलाश कर लिए गए, तो आप जो है वो खुदा को समझ जाएंगे। इस सवाल को जवाब देने हम कहाँ से आए हैं, इस चीज़ को अगर हम समझ गए कहाँ से आए हैं, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी, खुदा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हम कहाँ पे हैं ये अगर समझे तो हम दुनिया को समझ जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है दुनिया में, इसको हम समझ जाएंगे। हम यहाँ कहाँ पे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और अगर हम ये वाला सवाल समझे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी बाज़गश्त क्या है, तो हमें क़यामत समझ में आ जाएगी। समझ रहे आप? तो तीन चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। खुदा को हम ढूंढेंगे कि हम कहाँ से आए, किसने हमें भेजा है, कौन है हमको पैदा करने वाला, कौन है खालिक हमारा, हम यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, तो हमें जिम्मेदारी समझना है कि हम यहाँ पे हैं, तो हमें कुछ काम के लिए भेजा होगा। जब आपको मुंबई भेजा जाए तो आपके वालिद साहब अगर भेजें या फादर भेजें आपको, तो नहीं आप मुंबई क्यों भेज रहे हैं, हमें हमसे क्या काम है वहाँ पे, हम क्या करेंगे वहाँ मुंबई जाके, पूछे ना, जिम्मेदारी पूछेंगे, जिम्मेदारी पता चलेगी वहाँ पे। तो अगर ये वाला सवाल, तो हमारी दो बहस है। एक बहस है कि खुदा की तलाश, और क्या है, मार्कर नहीं लेके बैठा है ताला वाला, खुदा की तलाश और खुदा की शनाख्त, ठीक है ना। खुदा की शनाख्त यानी खुदा को पहचानना, खुदा को पाना। खुदा की तलाश यानी क्या मतलब, तलाश करना यानी पाना, और खुदा की शनाख्त यानी हम खुदा को पहचान, जब पाया जाए तो पहचान आए, शनाख्त, ठीक है ना, शनाख्त यानी पहचान, खुदा को पहचाने, खुदा को तलाश करें, खुदा को पहचाने, खुदा को तलाश करना यानी खुदा पाना। खुदा हमें कैसे मिलेगा? आप दुनिया में देखेंगे बहुत से लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, बहुत से लोग खुदा को नहीं मानते। हम सबका अकीदा के खुदा है, लेकिन हमको इसको समझने के लिए सिर्फ ये कि अहमद आगा ने कह दिया कि खुदा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसा कि आपने भी सुना होगा काम के दर्स में ये सुना होगा कि आपको तकलीद करना है ना, जानकार मुजतहिद से, आलिम से आपको पूछना है अहकाम के बारे में कि नमाज हम कैसे पढ़ें, रोज़ा हम कैसे रखें, हज पे जाएं तो कैसे हज पर जाना है, और बहुत सारे अहकाम जो हैं वो हमें एक मुजतहिद, जानकार मुजतहिद से क्या करना है,
जानना है, लेकिन ये खुदा को हमें मुज्तहिद के कहने पे नहीं मानना है। समझे नहीं समझे? ये हमें मुज्तहिद के कहने पे नहीं मानना। फिर कैसे मानना है बताइए? किसी के कहने आए ना, नहीं तो फिर वही बात हो गई, नबी इमाम के कहने पे भी हमें आपको नहीं मानना है। दो चीज़ें बेटा, एक चीज़ें हैं जो आपको अक्ल से समझना है, जिसको उसूल दीन कहते हैं। समझ लिया? उसूल दीन में यही खुदा आता है, तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत और क़यामत। इसमें तकलीद नहीं है। इसको कैसे समझना आपको? अक्ल के ज़रिए, अक्ली दलीलों के ज़रिए से, फ़िक्र और अक्ल के ज़रिए से समझना है आपको। और अहकाम जो भी बता रहे मौलाना, जिससे पहले वाला दर्स था, उसको आपको मुज्तहिद से पूछना है, और जैसे वो कहे वैसे करना है। उसमें अब अक्ल नहीं चलेगी आपको। और उन्होंने बताया 2 रकात नमाज आप ऐसे पढ़ेंगे, वज़ू ऐसे करना, तो इसमें नहीं कहेंगे आप क्यों ऐसे करें, क्यों हम नमाज ऐसे पढ़ें, क्यों ऐसे रोज़ा रखें, इसमें सवाल नहीं। वो जो ऐसे कहेंगे वैसे करना है। लेकिन इसको खुद को, खुदा को खुद से समझना है। समझिए, खुदा को खुद से समझना है, खुदा को खुद से समझना है, तकलीद नहीं है। खुदा को खुद से समझें। खुद से समझने का मतलब यानी अपनी अक्ल के ज़रिए, समझ रहे हैं आप? अक्ल के ज़रिए से, अपनी अक्लो फिक्र के ज़रिए से आपको समझना कि खुदा है या खुदा नहीं है। इसमें आपके अब्बा ने कह दिया, आपके भाई ने कह दिया, आपके अम्मी ने कह दिया खुदा एक है, मान लेंगे? नहीं मानना है। ये मानेंगे भी तो बाद में आप दिलो दिमाग से निकल भी जाए। तो अम्मा के अब्बा से कहने से ये खुदा को हमने नहीं माना है, बल्कि खुद से समझा है। खुद से कैसे समझेंगे? आपको एक वाक़या सुनाया आपकी खिदमत में। एक दहरिया तो खुदा को नहीं मानता था, और वो सबको हरा दिए था। जितने भी उस वक्त के आलिम दीन थे, सबको क्या कर दिया था? मुनाजरा करके, बहस करके हरा दिया था। एक अपने आलिम दीन शिया थे, और उनको भी बुलाया गया कि आप इसका जवाब दीजिए, कैसे मतलब इसको कायल करिए। दहरिया नहीं, दहरिया उसको कहते जो खुदा को न मानता हूँ। याद है? सबको नहीं याद है। हमें दलील देना है, हमें क्यों देना? उन्हीं ने देखे, ये नहीं कहा कि हम कह रहे खुदा मान लो, ये कह रहे खुदा मान लो, ये खुदा है। दलील और अक्ल के ज़रिए उसको समझाया, और मान भी गया। कैसे? उनको मालिम दीन को मुनाजरे के लिए आना था। वो दरिया कुछ पार रहते थे, किसी यहाँ पे लोग इस पार, हम लोग मौलाना दरिया के उस पार रह रहे हो। अब वहाँ से आए तो उनको आने में देर लगी, देर हो गई। मुनाजरे का टाइम मसलन 10 बजे रहा होगा, मिसाल तो अभी पहुँचे 11 बजे। तो कहने लगे जवाब दिया। जब वहाँ पहुँच गए तो उसका जवाब दिया, वही जो दलील इस्तिदलाल के उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। वो कायल हो गए। कहने लगे जब हम दरिया के किनारे पहुँचे तो वहाँ कोई कश्ती मौजूद नहीं थी, न वो कोई मल्लाह था, न कश्ती थी, कुछ नहीं था। हम वहाँ खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, और बहुत देर हो गई। आखिर में क्या देखा कि कुछ पटरा आया है ना, वो आपस में जुड़ता गया, और उसके बाद जो वो पटरे जब आपस में जुड़ गए, इकट्ठ करके तमाम पटरे जब इकट्ठा हो गए तो कश्ती बन गए। फिर कश्ती अपने आप जो है वो अब उसी कश्ती पे बैठ गए। फिर हम जो है वो कश्ती हम यानी हमको खेती हुई, अपने से खेती हुई, बगैर मल्लाह के लेके इस पार ले आई। तो ये वाक़या उस दहरिये को सुनाया तो कहने लगा कि पागल हो गए क्या आप? क्या पागल हो गए हैं कि कहीं ऐसा मुमकिन है कि खुद पटरा आपस में आए, पानी में जुड़ जाए, और फिर कश्ती तैयार हो जाए बगैर खेने वाले के, बगैर मल्लाह के, आपको बिठा के ला के दरिया किनारे छोड़ दे? ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये अक्ल हमारी मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यही तो अमल करना चाह रहे थे भाई। ये तुम ज़मीन देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, दरिया देख रहे हो, दरख्त देख रहे हो,
चरिंद देख रहे हो, परिंद देख रहे हो, इंसान देख रहे हो, पूरी उसी कायनात, चाँद सूरज ज़मीन आसमान सब है, और तुम पे तो कोई बनाने वाला नहीं है। जब एक कश्ती बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के, बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती? तो कहाँ से साबित किया? कुरान पढ़ा था उन्हीं ने? नहीं भाई, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस सुनाई रसूलुल्लाह की? नहीं, अक्ल से। क्या किया? अक्ल से साबित किया। तो हमें खुदा को जो समझना है, खुदा की तलाश, पहले खुदा हमें साबित कर, खुदा है। जब खुदा हम साबित करने को इस दुनिया में, दुनिया का खालिक है, राज़िक है, मालिक है, पैदा करने वाला, दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया पहले नहीं थी, बाद में बनाई गई है, दुनिया में हमको भेजा है, तो पहले खुदा को पहचान तलाश कर लेंगे, बाद में खुदा को पहचानेंगे। ये बात का मरहला है। यह पहले हमें खुदा साबित करना, खुदा है, फिर बात का मरहला है कि खुदा एक है या दो है। पहले ही साबित हो गया हल्की फुल्की दलील से कि खुदा है। जब कोई शय बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो ये कायनात बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। दूसरी दलील बच्चों को खुद मालूम है, तंजीम की किताब में कौन सी दलील है? वो चरखे वाली। चरखे वाली याद है दलील कि बुढ़िया चरखा चलाती है, और जब तक हाथ चलाती है चरखा चलता है, और जब हाथ रोक लेती है तो रुक जाता है। तो उसने उसी अपने चरखे से दूसरे आदमी को समझाया, खुदा को समझाया, कहा कि देखो चरखा जब मैं चलाती हूँ अपने हाथ से तो चरखा चलता है, और जब हाथ रोक लेती हो तो रुक जाता है। तो एक छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे? हजारों दलीलें। इस सब आपको अक्ल से समझना है। आप ट्रेन का सफ़र करते हैं, आप कहिए कि आज ऐसे सफ़र करके हैं, दिल्ली से ऊपर कोई ड्राइवर नहीं था ट्रेन पर, कोई मानेगा? आप कहते हैं आप बस से लखनऊ से, उस पर कोई ड्राइवर नहीं था, अपने आप बस चलती चली आई। आज कहिए कि सुबह हम जो साइकिल चला रहे थे उस पर बैठे नहीं तो साइकिल चल रही थी, पैंडल नहीं चला रहे थे, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। जब ये छोटी छोटी बातें आप नहीं मान रहे हैं, तो ये इससे कैसे तस्लीम करें कि खुदा नहीं हो, सब भी कायनात अपने आप चल रही है? हो सकता है दिमाग में? ये अकल में बात आने वाली नहीं है। तो अक्ल से हमें समझना है कि खुदा है, बाद में हम समझेंगे खुदा की शनाख्त इंशाअल्लाह। इसको बाद में, अभी दर्स बहुत सारा है, पूरे करीब कितने दिन चलेगा दर्स? 15 दिन है ना, 15-20 दिन, 15-20 दिन में मेरा ख्याल दर्स होगा। तो इसमें हम हैं और उस असातिज़ा हैं, खुदा के बारे में ये सब बताएंगे धीमे धीमे चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मुमकिन, जैसे अभी अपने टाइम में ये चीज़ मालूम थी, है ना, लेकिन अभी आपको बहुत चीज़ें, ये चीज़ मालूम थी ना, लेकिन इसके बाद आने वाली चीज़ें भी जो बयान की जाएंगी ना, वो फ़ौरन ही सारी चीज़ें इकट्ठा बयान नहीं की जाती। पहले आप मसलन क्या नाम है, नर्सरी में थे, फिर ये केजी में गए, यूकेजी में गए, फिर जो है वो फर्स्ट में गए, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, फिर हाई स्कूल, इंटर, और फिर पीएचडी बाद की नंबर आए। तो अभी हमने क्या किया, ये अल्फबा समझाया। ये भी हमारा क्या क्लास है? ये नर्सरी वाला क्लास है। अभी तौहीद के बारे में समझाएंगे, तौहीद यानी क्या मतलब, आदिल यानी क्या मतलब, खुदा एक है उसका मतलब क्या है, खुदा के सिफात राज़िक है इसका मतलब क्या है, खुदा के सिफात ज़ाती हैं गैर ज़ाती में क्या, बहुत सारी बहस होगी इंशाअल्लाह। आज गुफ्तगू हमारी यहीं पे ख़त्म होगी कि खुदा की तलाश हमें अपने से करना है, कि हम खुदा को तलाश करें, खुदा है कि नहीं है। बाद में हम साबित करेंगे खुदा एक है, खुदा दो नहीं हो सकता है, तो उसमें तौहीद की बहस आ जाएगी। अभी खुदा के वजूद के बारे में, खुदा है या नहीं है, अभी तौहीद के बारे में हमने बहस नहीं किया। खुदा एक है नहीं है, ये बात की बहस है। पहले हमें साबित करना खुदा है, फिर ये साबित करना खुदा एक है दो नहीं, फिर उसके सिफात वगैरह इंशाअल्लाह बयान होंगे। आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब जैसे हम ही लोग हैं, ज़माने से पढ़ रहे, 20-25 साल से पढ़ रहे, अब हम लोग पूरे चीज़ों को जान गए हैं। अभी आपका पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, अभी हम सख्त बातें आपको समझा नहीं सकते। धीमे धीमे एक एक करके आपको लेके आए, फिर गाड़ी बातें, सख्त बातें भी आपको इंशाअल्लाह बताई जाए। लेकिन साथ दीजिए, आइए खुशी खुशी इंशाअल्लाह। देखिए, ये ना देखिए कि 4 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग हैं, हम लोग क्या कर लेंगे। इमाम हुसैन क्या इज्जत है बताइए? इमाम हुसैन क्या इज्जत है?
10-12 है कि एक ठो है? एक है ये। इमाम हुसैन एक है, दो ठो नहीं है। इमाम हुसैन कहते हैं कि हम इतना बड़ा मार्का है, अकेले हुसैन कैसे हल कर लेगा? हैं? नहीं हो सके, एक आदमी हल कर सकता है। दो ही इमाम हुसैन, और एक ही इमाम हुसैन ने पूरी कायनात को क्या कर दिया? बदल दिया, दीन बचा लिए। तो एक दूसरे से हम अकेले क्या करेंगे, हम अकेले क्या करें, हम अकेले क्या करें? आप ज़्यादा हैं, आप कहें ज़्यादा हैं। करबला के बाद कुल 7 शिया बचे थे। कैसे शिया बचे थे? 7 शिया बचे थे। आज करोड़ों लाखों की तादाद में है। करबला के बाद कुल 7 शिया बचे थे, जिन्होंने अललन ऐलान किया था हम शिया हैं। शिया और रहे होंगे, लेकिन कह के कि हम शिया हैं। 7 आदमी गिने गए थे, वो भी मारे गए। क्या हुआ? वो भी मारे गए। अब बताइए, इस वक्त माशाल्लाह से हम आपकी क्लास में 10, 12, 15, 20 लोग मिसाल तौर पर भी आए, आइंदा ये सब 50-60 बच्चे हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचिए हम अकेले क्या करें, हम 5-6 वर्ष की पढ़ के क्या करेंगे। नहीं, आप आइए, आप अकेले हुसैन बन सकते हैं, आप अकेले अली बन सकते हैं, आप अकेले जो है वो पैगम्बर अकरम एक ही तो हैं। कैसे नबी आपके हैं? एक नबी हैं। तब देना चाहिए कि हम अकेले 1 आदमी 2 आदमी क्या करने का। अगर आप अकेले बेहतरीन आलिम दीन बन गए, बेहतरीन जानकार बन गए, तो क्या कहना है।